Good morning all. This is Dr. Santosh Shele from School of Pharmacy and Technology Management. I wish you all very happy International Yoga Day. We are celebrating every year on 21st June. So this year we at School of Pharmacy and Technology Management celebrating this day virtually, and today we have with us Dr. Anil Pethe, certified yoga trainer and teacher, as well as he is our Associate Dean at School of Pharmacy. I request him to demonstrate the different yoga asanas for the practice of faculty and students at their respective places. So please watch the video carefully and follow the instructions given slowly and carefully. Thank you very much. Very good morning to all of you. Today we are celebrating the International Yoga Day, and on the occasion of this International Yoga Day, our School of Pharmacy and Technology Management, SVKM NMIMS University Hyderabad campus, celebrating this International Yoga Day. But due to COVID-19 situation, this year we are celebrating it virtually. As I am training yoga to the students, so this year we are going virtually as far as the celebration of Yoga Day is concerned. So I request all the students, faculty members, teaching as well as non-teaching staff to perform the yoga at their respective places. Be safe, stay safe, and take care of your health. So we'll start demonstration of few of the asanas. सबसे पहला आसन है शरीर संचलन. जब भी हम योगासन स्टार्ट करते हैं, बिफोर टू स्टार्ट द योगासना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स योर बॉडी, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी टू डू द योगासना, एंड दिस शरीर संचलन विल रिलैक्स योर बॉडी. सो विल स्टार्ट विद द शरीर संचलना फर्स्ट. हाउ टू डू द शरीर संचालना? आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू द शरीर संचालना. दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखिए, एंड देन दोनों हाथ इस पोजीशन में रखिए एंड बी स्ट्रेट, एंड धीरे से शरीर को इस डायरेक्शन में घुमाइए टुवर्ड्स राइट साइड, देन कम बैक. पैर नहीं हिलाना है. दिस साइड, कम बैक. दोनों हाथों को ऊपर उठाइए लाइक दिस. आकाश की दिशा में मोड़ दीजिए. देन दोनों हाथों को कंधे से लिपट के स्ट्रेट रखिए. फिर बॉडी को राइट साइड में झुकाइए. towards left, towards back, and फिर सामने. जब भी आप सामने आओगे, दोनों हाथों से दोनों पैर की उंगलियों को पकड़ना है. पैर एकदम स्ट्रेट रखना है और शरीर को रिलैक्स मोड में छोड़ देना है. ठीक उसी तरह से जैसे कि शरीर कपड़े हम हैंगर पे टांगते हैं ना, उसी तरह शरीर को छोड़ दीजिए. एंड देन यू विल रियलाइज कि आपका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बढ़ा है. इसी अवस्था में बी देयर फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes, डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, एंड देन स्लोली. तो ये हुआ हमारा पहला आसन, शरीर संचलन क्रिया. श्रेणी में हम दूसरा आसन है जो कि ताड़ासन. ताड़ासन में क्या करना है हमको? इसको वृक्षासन भी बोलते हैं. ये शरीर की लंबाई बढ़ाने में बहुत लाभप्रद होता है. आपके दोनों हाथों को सीधे स्ट्रेट ले जाइए और दोनों पैर को ऊपर उठाइए. ये हुआ आपका ताड़ासन. और इसी अवस्था में बी देयर फॉर एटलीस्ट 2 minutes and then come back.
ताड़ासन या वृक्षासन आप एक पैर से भी कर सकते हो। And this is very important, like if you are balancing your body by using only one leg, very important if you can do this, if you can perform this, and if you will be stable maybe for at least 2-3 minutes in the same position, then again come back, perform this exercise by using another leg, and be there in this position maybe another for 2-3 minutes. If possible to use slowly practice closing of your eyes while performing this asana. This will help you in balancing your body. It is very difficult, like whenever you are closing the eyes, automatically you will lose your balance. But then slowly you can practice this. Then next asana, that is the Trikonasana. What to do in Trikonasana? सबसे पहले ये अवस्था में आ जाइए, एक पैर को धीरे से चेंज कर दीजिए, एंड देन ये आपका राइट हैंड से होल्ड योर अंगूठा लाइक दिस। शरीर एक त्रिकोण की तरह बनता है, so this is the Trikonasana. You have to practice the same process with another leg. So we have practiced in a sitting position. So slowly नीचे आ जाइए और इस अवस्था में बैठ जाइए। This is called as वज्रासना। वज्रासन के पोजीशन में बैठ जाइए। And then this Vajrasana is very helpful, like if you are this asana is very useful for to improve your digestion. Generally आप डिनर के बाद, लंच के बाद, यदि if you can sit for 5 to 10 minutes in this asana, then I think this is very useful, the best asana. And then you can perform the Supta Vajrasana if it is possible to you. How to do Supta Vajrasana? धीरे से लेट जाइए। शुरू में थोड़ा दिक्कत जाएगा, बट slowly you can practice to perform the Supta Vajrasana. Yeah, this is Supta Vajrasana. Then come back. Okay, so we have performed the Supta Vajrasana. Now we will perform the Halasana. हलासन में सबसे पहले लेट जाइए, ये अवस्था में आप लेट जाइए, धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, 45 डिग्री में स्टेबल कीजिए, देन 90 डिग्री में, देन दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए एंड आपके पैर दोनों पीछे लेकर आइए, लाइक दिस। संपूर्ण हलासना की प्रक्रिया में आपके दोनों पैर के अंगूठे जमीन को टिकते हैं। If you can practice this asana, this is the best asana to prevent yourself from diabetes. Best asana for diabetes. हाँ सर, क्या करना है? कंटिन्यू। Now next asana is सर्वांगासना। अभी हमने हलासन किया है। सर्वांगासना में क्या करना है? सर्वांगासन ये
बहुत ही सुंदर आसन है। सर्वांगासन नाम खुद बताता है कि ये सर्व अंगों के लिए दिस इज वेरी यूजफुल आसना फॉर योर एंटायर बॉडी and carefully you have to do this asana. It's not like that like on first day only you will be able to do this asana. So Done, sir. as I told you in Sarvangasana, this is the asana where useful for your entire body. You have to lay down, you have to be there in lay down position, in this position, and then this asana, it is just like halasana, whatever we have did. Like पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, ओके पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, एक 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर आपके दोनों हाथ ये नीचे आ जाएंगे एंड धीरे से शरीर को आपको ऊपर उठाना। तो ये हो गई आपकी सर्वांगासना की पोजीशन। ये पोजीशन में आप रहते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, स्पेशली पूरे बॉडी को लाइक जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। सो दिस इज द बेस्ट आसना इफ यू कैन परफॉर्म दिस एवरी डे, मे बी फॉर 2 मिनट्स, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। सो धीरे से फिर वापिस आना है। दोनों पैर 90 डिग्री, 45 डिग्री और फिर नीचे। इस वे में आपको सर्वांगासन करना है। तो दरवाजा खुल रहा है बाहर का। सर्वांगासन के बाद जो आसना करते हैं जिसको विपरीत आसना बोलते हैं, या जनरली वी यूज टू से द कॉम्प्लीमेंट्री आसना, दैट इज मत्स्यासना। अब मत्स्यासना में व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो पद्मासन में आ जाइए। एंड ये उन्हीं के लिए पॉसिबल होता है जो पद्मासन कर सकते हैं। एंड देन धीरे से लेट जाइए एंड देन पीठ को ऐसे उठाइए और दोनों अंगूठे पकड़िए। दिस इज द कंप्लीट पोज ऑफ दिस आसना, मत्स्यासना। Why it is called as मत्स्यासना? Because शरीर का आकार एक मत्स्य के भांति होता है। And this is very useful asana as far as the chest is concerned, as far as the lungs are concerned. Wonderful asana. धीरे से आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, जैसे कि मत्स्यासना। एंड ये एक आसना जो हलासन के बाद करते हैं, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री आसना टू हलासना। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री आसना टू हलासना। व्हाट यू हैव टू डू इन हलासना, दिस इज द चक्रासना। अब चक्रासन करने से पहले यदि पॉसिबल है तो अर्ध चक्रासन कर लीजिए। दिस इज अर्ध चक्रासन। ये तो हम सबके लिए पॉसिबल हो ही सकता है, अर्ध चक्रासन। आप ये अर्ध चक्रासन करो एंड देन अर्ध चक्रासन को आगे कंटिन्यू करो। एक दोनों पैर ऐसे, एंड ये हम बचपन में बहुत करते थे। यस, आपका शरीर एक चक्र के भांति होना चाहिए। दिस इज चक्रासन। धीरे से वापस आ जाइए। अभी आते हैं पेट के बल लेटे हुए आसन, जिसमें से सबसे पहला आसन है भुजंगासन। इस आसन में आपके शरीर का जो आकार होता है एक भुजंग या स्नेक की तरह होता है, इसलिए इसको भुजंगासन कहते हैं। अब ये भुजंगासन कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो लेट जाइए इस पोजीशन में और धीरे से आपका माथा जमीन पे टिका हुआ है, फिर नाक को जमीन पे टिकाइए, फिर आपके ओठ, फिर अनुवटी,
और इस तरह से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। जितना पॉसिबल है उतना आप शरीर को ऊपर उठा सकते हो, जितना पॉसिबल है उतना शरीर को उठाइए। एंड दिस आसना इज वेरी यूजफुल आसना एज फार एज द लंग्स आर कंसर्न। आई थिंक कोविड-19 सिचुएशन में इफ यू कैन परफॉर्म दिस आसना, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड धीरे से आप नीचे आ जाएंगे। इफ यू आर एबल टू परफॉर्म दिस आसना maybe twice, thrice, then it is best thing you can do. Now the next asana is नौकासना। नौकासन में क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे पकड़ना है, शरीर का आकार एक नौका की तरह होना चाहिए, एक बोट की तरह होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नौकासना। पॉज। इंस्ट्रक्शन सर। ये एक आसना बहुत टफ आसना है जिसको मयूरासन भी बोलते हैं। ये मयूरासन जिनको पॉसिबल है वही कीजिए। दिस इज मयूरासना। इफ इट इज पॉसिबल टू यू, देन ओनली यू कैन डू दिस। प्राणायाम के आसना के बाद उतना ही महत्वपूर्ण रखता है प्राणायाम। अष्टांग योग में प्राणायाम भी एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अभी प्राणायाम, अब जिनके लिए आसना पॉसिबल नहीं है या फिर आप आसना के बाद भी प्राणायाम कर सकते हो, तो हाउ टू परफॉर्म फ्यू प्राणायाम, लाइक टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यू प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए आपको स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। This is Sahajasana. Either you can sit in Sahajasana. If possible for you, then you can sit in Padmasana. आप पद्मासन, सहजासन, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो। स्ट्रेट बैठना है। एंड इसमें सबसे पहले दिस इज द रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज एंड दिस इज द मॉड्यूलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। नाउ हाउ टू डू दैट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज? So, in case of the respiratory exercise, now how to perform this breathing exercise? So, basically the breathing exercise, इसके लिए like एक नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, या दोनों नॉस्ट्रिल से लेना है, दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। अलग अलग टाइप के वेरिएशन है। And these variations are nothing but the different types of pranayama. So we'll see the first one, that is the Anulom Vilom pranayama. Now Anulom Vilom. So you have to start breathing from one nostril. You have to hold your breath and you have to leave the breath from another nostril. एक नाक से लेना है, होल्ड करना है और छोड़ना है। इसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत मायने रखता है। मतलब सपोज जनरली यू हैव टू काउंट इट लाइक 1 2 3 4। If that much time you are taking for inhalation, same 1 2 3 4 for holding the breath and 1 2 3 4 for breath छोड़ने के लिए। So this is the pattern that you need to follow. Now how to do that? ये मुद्रा बना लीजिए and then use your thumb to press the right nostril. Right nostril से आपका थंब पे रखिए, क्लोज दिस, एंड इन अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए। सो यू हैव टू काउंट, मन में ही काउंट करो 1 2 3 4 आई एम होल्डिंग द ब्रीथ एंड 1 2 3 4 एक्सहेलेशन। अगेन गिव अ पॉज 1 2 3 4। फिर राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, होल्ड करो ब्रीथ को एंड छोड़ दीजिए। बस इस सीक्वेंस में आपको करना है। 1 2 3 4 राइट नॉस्ट्रिल, 1 2 3 4 होल्ड द ब्रीथ, 1 2 3 4 एक्सहेलेशन। इफ यू फॉलो दिस पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज द अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर रिवर्स डायरेक्शन में करना है। नाउ सूर्य ब्रेदन प्राणायाम।
Surya Vedan and Chandra Vedan pranayama mein, like the basic difference between these two pranayama, like Surya Vedan is called as the right nostril breathing, whereas Chandra Vedan pranayama is called as the left nostril breathing. So इसमें एक ही नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, होल्ड करना है एंड दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ना है. इसमें यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, लाइक इन केस ऑफ सूर्य वेदन. सपोज सूर्य वेदन में राइट नॉस्ट्रिल से यू हैव टू स्टार्ट द ब्रीदिंग 1 2 3 4, होल्ड इट फॉर 1 2 3 4, 1 2 3 4. फिर से राइट नॉस्ट्रिल से ही लेना है 1 2 3 4, होल्ड द ब्रीथ and exhalation. This is Surya Vedan. Exactly opposite to this Surya Vedan, that is the Chandra Vedan. Left nostril breathing. लेफ्ट से अंदर लेना है, ब्रीथ को होल्ड करना है, राइट से छोड़ना है. This is the Chandra Vedan pranayama. Now the next pranayama, that is the Bhramari pranayama. I will recommend you if you can do this pranayama on day to day basis. Bhramari pranayama में क्या करना है, ये दोनों आपके जो अंगूठे हैं, दोनों अंगूठे से आपके दोनों कान बंद करना है एंड ये चारों उंगलियां आपकी आंखों पे रखना है. क्लोज योर आईज एंड जब भी आप सांस को छोड़ोगे, नाक से ही सांस अंदर लेना है एंड व्हेनेवर आप जब सांस को छोड़ोगे, सांस को छोड़ते वक्त ओम के ध्वनि में उसको छोड़ना है. लाइक मैंने सांस अंदर ले लिया, छोड़ते वक्त तो ये भ्रामरी प्राणायाम, दिस इज वेरी यूजफुल प्राणायाम एज फार एज द मेडिटेशन इज कंसर्न. एंड भ्रामरी आप करोगे तो ऑटोमेटिकली लाइक यू विल स्टार्ट लुकिंग इनटू योर ओन बॉडी, ओन सोल. लास्ट में कपालभाति प्राणायाम. कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ सांस को जोरों जोरों से बाहर छोड़ना है. एंड आई विल रिकमेंड यू व्हाइल डूइंग द कपालभाति प्राणायाम, दोनों हाथों को इस तरह से पकड़िए एंड डू दी कपालभाति. जस्ट सांस को बाहर छोड़ना है, अंदर नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. जस्ट फोर्सफुली बाहर छोड़ना है. सो दिस इज कपालभाति प्राणायाम. धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करो. दिन में लाइक 5 बार कपालभाति, 10 बार, और प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते 100 बार, 500 बार, इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू डू दी कपालभाति प्राणायाम, शरीर के पूरे टॉक्सिन्स बाहर चले जाएंगे. एंड सबसे आखिरी में ओंकार साधना. ओंकार साधना मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है. आप ओंकार, इफ यू कैन प्रैक्टिस दिस ओंकार ऑन डे टू डे बेसिस, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप यदि ओंकार कर सकते हो तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है. बॉडी की हर सेल में हर सेल एनर्जाइज हो जाएगा आपका इफ यू प्रैक्टिस दी ओंकार साधना. हाउ टू डू दैट ओंकार साधना? लाइक वेन एवर यू आर सेइंग दी ओम, ये जब हम म शब्द पे आते तो ये आपका जो दोनों लिप्स है ये एक दूसरे को चिपक जाना चाहिए. दैट इज दी वे टू से दी ओंकार. लाइक आई विल डिमॉन्स्ट्रेट यू. यू कैन ऑल्सो सी हियर ऑल्सो. एक्चुअली ये करने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ आपको ऐसे रखना है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए कहा है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ओमकार लाइक दिस. जब म पे आओगे
तो दोनों लिप्स को क्लोज करना है. धन्यवाद. I just want to convey the message to all my faculty, staff, the students, and all the viewers who are watching our channel. Stay safe, stay healthy, and take care of yourself and your family. Wish you once again wish you a very happy International Yoga Day. Slowly start practicing yoga. If you practice the yoga, I think you will really enjoy your life. Thank you very much. Have a nice day. यस बोलना है ना. Oh.